Hello viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all in my YouTube channel. Today we will study short story of English classes 12 titled A Pinch of Snuff. It is a very good short story written by Manohar Malgonkar. This very short story is written in a comic narrative style. In this short story, the writer tries to describe the psycho-sociological and political feeling of a man from a middle class family to BVI level, you may say high profile family. In the short story, writer tries to describe the feeling, behavior and style of different kind of people and it's in different way. In this story, the writer also tries to sketch the miserable situation of an officer which is under secretary on probation. How the mother of that officer enforced to entertain Nonu Kaka, which is his maternal uncle. Before enjoying the whole story, let us know about its writer, Mr. Manohar Malgonkar. He was born in 1913. He is famous for his novel as well as his short stories. There are 25 publications, of which the credit goes to him. So far as his famous creation are concerned, these are Bend in Ganges, Distant Drum, Bombay Beware, etc. His style is comical, you may say humorous, but goes deeply in various aspects of life. His narrative is able to ties up the reader's excitement till last. Whenever we are studying the story or novel or watching some movies, what we are finding? We are finding there are different kind of stories. One is the event based, one is the hero based, one is the villain based, one is the narrative based, narration based. So the main sketching of the story is not so vast. The Nanu Kaka, which is the maternal uncle of the writer, or we may say the under secretary on probation, he is coming to Delhi to see the ministers, and at last both mama and bhanja, we may say maternal uncle and his nephew, goes to North Block where the ministers are available, or there is the secretariat where the ministers and the secretariats are living, or we may say working. But it was a very tough task for anybody or the common people to see the ministers. And in this story, Mr. Manohar Malgonkar is describing how with his wisdom Nanu Kaka was able to see the minister. It is the story, but it is written in the narrative style. And in coming Delhi, how Nanu Kaka has to face the TC, how he was dealing with the TC, how he dealt with the Sohan Lal Ratiram, how he was behaving with the secretary, how he managed to establish himself as the astrologer of the King Nanor. All these are the story, all these are the facts with whom we will well acquainted with, and we will know
the fact figure. So come to the next point, how he is describing and how he is writing, what kind of beautiful, comical and humorous style is being possessed by Mr. Manohar Malgaonkar. We may say his style is comical but goes deeply in various aspects of life. His narrative is able to rise up the reader's excitement till last. After knowing something about the author in very brief, now come to the story. As I have described that it is a comic story. In this story, Mr. Malgaonkar is presenting a comic story full of wit and adventure. What is the meaning of wit and adventure? We may say it is in Hindi बुद्धि and एवं जोखिम. तो विट एंड एडवेंचर का हिंदी क्या होता है? बुद्धि एवं जोखिम. ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं. अब आइए कि मेन कैरेक्टर इसका, कि व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टर. तो द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ नोनू काका. नोनू काका इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर. The writer has placed himself in the place of narrator and narrates the whole story. The story writer is an under-secretary on probation. He has to receive Nanu Kaka on his mother's insistence. Now come to Nanu Kaka. Who is he? He is the maternal uncle of this secretary and coming to Delhi to see some ministers. On the request of his mother, the secretary has to take Nonu Kaka to the North Block, where the secretariat of the ministers exist, but Nonu Kaka experienced bitter for this North Block. Later, Nonu Kaka goes to see Sohan Lal, who is a party boss, and successfully impresses him by his words and wits, showing that he knows the ambassador's Barkat Ali very well. During talk with Sohan Lal, he comes to know about welfare minister. Here he also knew that Sohan Lal wanted his son to get married with welfare minister's daughter, but the minister refuses. On the other hand, the welfare minister wants to fix his daughter's marriage to the prince of Ninor. How Nanu Kaka went to meet the welfare minister in the guise of hereditary astrologer of Maharaja of Ninor, and he mentions it on his visitor's book. As soon as the welfare minister comes to know about this, the minister himself decided to see Nanu Kaka on the writer's residence. Finally, this is a fantastic creation of Mr. Manohar Malgaonkar, where he has beautifully presented the characters. It really leaves a fresh touch to reader's mind. The story starts from the efforts of the mother to awaken the writer, which shook him. Now come why he was shocked. He was shocked because the Nanu Kaka is coming and it will disturb his lifestyle, it will disturb to his duty. So he was shocked. He imagined that Nanu Kaka will stay on his residence till months or weeks. So he was shocked. But we know the writer's mother was very loyal to her brothers, mothers and fathers, or we may say loyal to his Maike. So the mother announced that Nanu Kaka was coming. Nanu Kaka was coming to see the ministers. Now the writer just imagines that he will stay for weeks. He further thinks about the task, which is very tough because he is as sustained to regard ministers as being 2 steps higher than God. The secretaries being just 1 step higher. After that, we may say that the under secretary on probation has to go to receive Nanu Kaka.
Nonu Kaka stood in doorway of a second-class carriage, a striking figure, white-haired, with an impressive mustache. He returns to the residence of Under Secretary with him in his car. Mother was waiting on the doorstep, her face wreathed in a smile. The writer also found that she had installed him in his bedroom, so that he had to put a charpai for himself in the back of the veranda. After that, we may see that Nonu Kaka left for the north block. In returning, he was very much curious to know that why the writer is not being sent to foreigner tour. Next time, they decided to meet Sohanlal. At his residence, a secretary in a spotless clothes received them and showed them into a cool white room before he asked our business very politely. The secretary said he seldom sees any visitors without a previous appointment. Anyhow, he calls Nanu Kaka after 3 days. After that, Nanu Kaka comes to know that Maharaja of Ninor in the close relative Maharaja of Ninor is the close relative of the welfare minister. He tells his Bhanja to hire a grand car and pretends to be his driver. You may say, pretends to be his driver. He himself dressed like an astrologer, and in that very dress he went to the residence of the welfare minister, where he writes his false address, showing himself as the hereditary astrologer of the Maharaja of Ninor in the visitor's book. As soon as the minister see the address of the so-called astrologer, he comes to meet Nanu Kaka on the residence of Under Secretary on probation. Thus we see that Nanu Kaka sees the minister easily, and how he managed, how he adapted the Jugaad technology, how he adapted the falsehood, and by adapting some manner he was able to see the minister very easily. So here Mr. Manohar Malgaonkar describes about the wisdom or the style, how a common man may practice to see the ministers, where it is very tough task for an ordinary man to see the ministers, which is beautifully described by the writer. तो यहाँ ये कहानी लघु कहानी है। इस कहानी में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे मनोहर मालगांवकर ने विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का चरित्र चित्रण किया है, उनके मनोदशा, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी राजनीतिक स्थिति, उनका कद, उनका रहन सहन, सारे चीज़ों का समावेश बहुत ही सुंदर ढंग से मनोहर मालगांवकर ने किया है। बहुत प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार हैं मनोहर मालगांवकर। 2500 रचनाएं उनकी प्रकाशित हुई हैं। 2500 रचनाओं को रचने का श्रेय उन्हें जाता है, और उनकी जो प्रसिद्ध कृति है वो प्रसिद्ध कृति सब है बेंड इन द गेंजेज, डिस्टेंट ड्रम, बॉम्बे बीवेयर इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बहुत ही ह्यूमरस और बहुत ही गंभीर रचना रचते हैं मालगांवकर साहब। 1913 में इनका जन्म हुआ और उसके बाद बहुत ही प्रसिद्ध हुए। और इस कहानी के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि कैसे अब जो सेक्रेटरी लोग होते हैं वो कितना बड़ा ओहदा होता है। सामान्यतया जो आईएएस लोग होते हैं वो सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचते हैं। तो यहाँ जो
वो अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन के जगह पर अपने आप को स्थापित करते हैं मनोहर मालवंकर, और उसके माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे वो जब लेटे रहते हैं तो उनकी माताजी बोलती हैं कि ननू काका आ रहे हैं। तो यह जो समाचार है, यह जो न्यूज़ है, मिस्टर मतलब सेक्रेटरी को हिला देता है। वो सोचते हैं कि अब उनको इंटरटेन करना होगा, उनके आगे पीछे चलना होगा। और उसके बाद जब वो समझते हैं कि वो मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं, तब तो और भी व्यथित हो जाते हैं कि उनके तो जैसा कि वो समझ रहे हैं, जितनी कि उनको समझदारी है, जैसा कि वो फेस करते हैं, देखते हैं कि मिनिस्टर से मिलना कितना कठिन काम है। सामान्य आदमी को किसी मिनिस्टर से मिलने में हफ्तों और महीनों लग जाता है। एक सेक्रेटरी को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि मिनिस्टर जो है सो भगवान से भी 2 कदम आगे हैं और सेक्रेटरी 1 कदम। तो इस हिसाब से ये व्यंग्योक्ति है, और उसके माध्यम से एक जो सामान्य आदमी है उसकी स्थिति को भी बयां किया गया है, और सेक्रेटरी के भी स्थिति को कि कैसे वो बेचारा निरीह प्राणी जैसा अपने आप को फील करता है कि एक मिनिस्टर से मिलाने में भी उसकी भूमिका कितनी सीमित होती है। तो इस पर प्रकाश डाला है मिस्टर मनोहर मालवंकर ने। तो ये जो पिंच ऑफ स्नफ कहानी है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक चुटकी सूंघनी या एक चुटकी नस्वार। लोकल लैंग्वेज में मैथिली में इसको नोइस भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस कहानी में एक पात्र, या यूँ कहें कि मुख्य पात्र ननू काका हैं, जो कल्याण मंत्री वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली आते हैं, और फिर देखते हैं कि कितना कठिन काम है इस दफ्तर से उस दफ्तर, इस चपरासी से उस चपरासी तक उनको चक्कर लगाना पड़ता है। तब जा कर के मालूम होता है कि ये बहुत कठिन काम है। और उनका भांजा जो अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन है, वो तो पहले ही से हाथ खड़ा कर दिया रहता है कि ये बहुत कठिन काम है उसको उनको मिलाना। तो अपने ही एक व्यूह रचते हैं, एक तिक्रम का सहारा लेते हैं, एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, और फिर बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। और आसानी ही से नहीं होता है, बल्कि मंत्री स्वयं उनको देखने के लिए आते हैं। तो ये सब सारे चीज़ों का इसमें उल्लेख किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैसे आम आदमी ट्रेन से दिल्ली आता है, और कैसे एक महिला का अपने मायके से लगाव होता है। महिला जो लेखक की जो माताजी हैं, वो अपने भाई, पिताजी और मायके वालों के प्रति बहुत लॉयल हैं, बहुत उनको लगाव है, बहुत मानती भी हैं। और इसी जो मायके प्रेम में वो भूल जाती हैं कि उनके लड़का को स्वागत करना पड़ेगा, उनके आने से वो कितनी परेशानी में पड़ेगा, सेक्रेटरी महोदय कितने परेशानी में पड़ेंगे, इन सारे बातों को भूल जाती है महिला। तो इसका बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग हुआ है। उसके बाद फिर ट्रेन के माहौल का, ट्रेन के वातावरण का, ट्रेन में जो कुछ फेस करते हैं ये राइटर महोदय, उसका भी उल्लेख है कि कैसे उनके पास 3rd क्लास टिकट है, उससे वो 2nd क्लास में यात्रा करते हैं। और फिर कुछ प्रशंसा भी कि कैसे वो जो युवा टीटी है वो कितना अच्छा आदमी है, कैसे उन्होंने अच्छा व्यवहार के साथ बिना कोई दिक्कत झेले 3rd क्लास के टिकट पर कैसे वो 2nd क्लास में यात्रा किए हैं, इसका उल्लेख किया है। द राइटर इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द टीसी, टिकट checker or ticket inspector, with the help of whom he was able to travel in the 2nd class on the basis of 3rd class ticket. So it is the description, and it is the
lifestyle of a common people, how he has to manage himself to get comfort, and how the situation of the public is. He is ready to bear the money, he is ready to expend the money, but there is no room, there is no vacancy. कोई पैसा खर्च करने के बाद भी इतनी भीड़ है कि ट्रेन में टिकट नहीं मिल पाता है। तो फिर जो टिकट मिले तो बुद्धिमान आदमी सबके लिए ये होता है कि उसी में मैनेज कर लीजिए, टिकट सबसे बात कर लीजिए। देश की स्थिति है, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये कोई मतलब कल्पना नहीं है, ये देश की स्थिति है कि कई बार जो है आपको मतलब स्लीपर क्लास के लिए टिकट नहीं मिला, लेकिन अगर आप टीटीसी को मैनेज करने में सफल होते हैं तो बहुत इट विल क्रिएट कंफर्ट इन योर जर्नी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद फिर जो अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन हैं उनको अपने माताजी के सलाह से, माताजी के आदेश से उनको लेने के लिए जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? तो स्टेशन पर जाना पड़ता है। अब स्टेशन से जो उतरते हैं तो फिर उतरते हैं तो उनके हाथ में एक बास्केट थमा देते हैं, और बास्केट को जो थमा देते हैं तो उसमें क्या रहता है? तो उसमें कीटेन रहता है। तो इसके लिए जो एक माने वाक्य प्रयोग हुआ है, सेंटेंस प्रयोग हुआ है, आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म। मतलब मैंने टोकरी में अपने बाँह को दबा लिया। मतलब जब चाचा जी उनके मतलब मैटरनल अंकल मामा उन्होंने नानू काका मिलते हैं और अंडर सेक्रेटरी को ये बास्केट की टोकरी थमा देते हैं, तो अंडर सेक्रेटरी महोदय क्या करते हैं? वो अपने टोकरी को अपने बाँह में दबा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद जो है बाहर में उनको कार से लाते हैं। कार से जब वो लाते हैं अपने नन्नू काका को, तो माँ देख करके बहुत आह्लादित होती है, बहुत प्रफुल्लित होती है। फिर जो वो कीटेन जो उनको भेंट कर रहे हैं वो नानू काका, तो उससे लेकर के बहुत उनको मन में धन्यवाद भाव है कि बड़ा अच्छा उपहार लाए हैं, इस हिसाब का भाव है। इस पर खूब बतंगड़ भी होता है, खूब बातचीत भी होती है, खूब चर्चा भी होती है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि कहानी के जो मतलब जो राइटर हैं वो अपने आप को वो अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन के जगह पर रखते हैं कि कैसे ये जो उनके आने की खबर से वो कैसे अंदर तक हिल जाते हैं। फिर कैसे उनकी माँ बताती है कि वो मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं, तो सोचते हैं कि पहले तो सोचते हैं कि क्यों नहीं उनको ये कह दिया जाए कि हम लोग बाहर हैं या छुट्टी पर हैं या तबादला हो गया है। तो ये सब बात को माताजी से कह करके उनके यात्रा को टलवाना चाह रहे हैं। जब ये वो सुनते हैं अंडर सेक्रेटरी महोदय कि नानू काका आ रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, ओ माय गॉड, आई सेड could not we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something? Oh my God। जब वो मतलब अंडर सेक्रेटरी महोदय को ये जानकारी मिलती है कि नानू काका आ रहे हैं, तो अपने माताजी को कह रहे हैं कि क्या हम उन्हें यह कहते हुए तार नहीं भेज सकते कि हम जा रहे हैं या मेरा ट्रांसफ़र हो गया है या कुछ और, माने कोई भी उपाय से जो नानू काका उनके निवास स्थान पर नहीं आए, तो ऐसी व्यवस्था करने के लिए वो अपने माताजी से अनुरोध कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें इन बातों को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखेंगे कि उसी दौरान में जब वो नानू काका को लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो भीड़ रहती है, तो भीड़ में
से वो कैसे अपने आप को स्क्विज्ड करके कैसे भीड़ में घुल मिल जाते हैं, दबते दबाते कैसे दरवाजे से घुस करके। एक सिख परिवार के शादी की पार्टी थी, तो उस पार्टी में जो भीड़ सब थी तो उसमें कैसे अपने आप को मतलब दबते दबाते कैसे वो आए, उसकी चर्चा की गई है। आप देखेंगे उसमें कि आई डक्ड एंड रेन एंड मिंगल्ड विथ क्राउड, ये वाक्य का प्रयोग हुआ है। थोड़ा सा स्टाइलिश वाक्य है, आप इसको पूरा पढ़िए। इसमें कुछ वोकेबलरी सब भी अच्छी होगी आपकी, कुछ वाक्य सब विन्यास ऐसा है जिसको ध्यान में रखने से अंग्रेजी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक वाक्य का प्रयोग हुआ है कि जब मतलब वो वहाँ पर उनको लेने के लिए गए तो सिख परिवार के शादी की जो भीड़ थी तो उसमें कैसे वो बचते बचाए निकले हैं, तो उसी में प्रयोग हुआ है। आई डक्ड एंड रेन एंड मिंगल्ड विथ क्राउड, मैं झुक गया और पीछे दौड़ा, भीड़ के साथ घुल मिल गया। फिर इसको देखिए, पूरा वाक्य को देखिए। आई डक्ड एंड रेन एंड मिंगल्ड विथ क्राउड एंड स्क्विज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी। स्क्विज्ड माने क्या होता है? स्क्विज्ड का मतलब होता है दबते हुए। क्राउड का मतलब क्या होता है? तो भीड़। तो इसको अगर आप पूरा, ये भाव ये है यहाँ पर कि मैं झुक गया और पीछे दौड़ा, भीड़ के साथ घुल मिल गया। जब पूरा भीड़ है वहाँ पर, आप जो वहाँ से गाड़ी पार्क के जगह से आएंगे तो भीड़ में मिल ही जाएंगे ना, तो भीड़ के साथ वो लोग घुल मिल जाते हैं। अब भीड़ के साथ जो घुल मिल जाते हैं तो भीड़ में कैसे आप एडजस्ट होइएगा? तो आप दबते दबाते हुए एडजस्ट होना पड़ेगा। तो फिर दबते दबाते हुए दरवाजे से घुस गए और फिर वहाँ जो भीड़ थी उसमें सिख के विवाह की पार्टी जो समाप्त होती है, तो पार्टी समाप्त होने के बाद फिर लोग जाएगा रास्ता पर, तो भीड़ हो जाएगी ना। तो उस चीज़ को मतलब उल्लेख किया गया है। तो इस हिसाब से नौनू काका जो निवास स्थान पर आते हैं, अपने सिस्टर के निवास स्थान पर आते हैं, फिर भाई बहन की मुलाकात होती है। बहन बड़ा गर्मजोशी से उनका स्वागत करती है। फिर वो किटेन का जो है बिल्ली का बच्चा, उसको देख करके बहुत खुश होती है। इसके बाद फिर जो सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन है, उनके बेडरूम में ही नौनू काका के सोने का इंतज़ाम किया जाता है। अब नौनू काका के लिए जब इंतज़ाम किया गया ये राइटर के कमरे में, तो वो राइटर महोदय कहाँ सोएंगे? राइटर महोदय, या ये यूँ कह लें कि सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन जो है वो कहाँ सोएंगे? तो उनको बगल में जो चारपाई डालना पड़ा, बरामदा पर चारपाई डालना पड़ा। तो कुल मिलाकर के ये एक स्थिति को बयां करने वाली कहानी है कि बाहर में लोग कैसे रहते हैं। बाहर में जहाँ लोग नौकरी कर रहे होते हैं, तो ये कहानी है एक ओहदेदार व्यक्ति की, एक ओहदा पर, और जो कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं है, ये बड़े से ओहदा पर काम करने वाले व्यक्ति की कहानी है कि उसके यहाँ जब कोई गेस्ट आता है और उसको बेडरूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उसको बेचारे को चारपाई बरामदा पर लगाना पड़ता है। तो इस हिसाब से स्थिति है। और लेकिन भारत में तो परंपरा है ना, अतिथि देवो भव का। जब कोई गेस्ट लोग आते हैं तो कैसे लोग फील करते हैं? अच्छा ही फील करते हैं। और जो न्यू जनरेशन में है लोग, तो वो कैसा फील करेंगे, उसकी भी चर्चा है। और माता जी ओल्ड जनरेशन की हैं, तो उनका विचार कैसा है? बड़ा खुश हो रही हैं। लेकिन एक व्यवहारिक कठिनाई भी है कि जो नौकरी कर रहा है उसको छुट्टी लेना पड़ेगा, उसको रिसीव करना पड़ेगा, उसके बाद उसको कोई उपलब्धि नहीं है। तो एक हिसाब से उसको लग रहा है कि हम यूज हो रहे हैं। दूसरा है कि उसके पास समय नहीं है। तो फास्ट लाइफ में जब कभी अब
ये कहानी है सरकारी नौकरी, सरकारी में भी एक अच्छे और ऊंचे ओहदे पर काम करने वाले की कहानी है। आप सहज अनुमान लगा लीजिए कि जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट जॉब में हैं, जो डेली कुआं खोद करके डेली पानी पीते हैं, उनके यहाँ जो गेस्ट अगर आता है, इस हिसाब से अगर उनको इंटरटेनमेंट करना पड़े तो कितनी परेशानी होती है। एक हिसाब से आप इस हिसाब से मतलब अनुमान, सहज अनुमान लगा सकते हैं। अब कोरोना काल में क्या हुआ, कोरोना में जब लॉकडाउन लग गया तो दिल्ली बम्बई में जो लोग रह रहे थे उनके पास ये स्थिति नहीं थी कि वो मतलब महीना 2 महीना बैठ कर के भोजन कर सकें। बहुत आदमी पैदल ही वहाँ से विदा हो गए। तो एक हिसाब से बहुत संक्षेप में ये आदमी की क्या स्थिति है बाहर में, और एक ओहदेदार व्यक्ति की ये स्थिति है तो साधारण आदमी की क्या स्थिति होगी, इसको पूरा समझाने का और बयां करने का कोशिश कर रहे हैं मनोहर मालगोंकर साहब। तो इस हिसाब से जो गेस्ट महोदय हैं, नानू काका हैं, उनको रखने का इंतज़ाम कर दिया जाता है। उसके बाद फिर आराम उराम फरमाने के बाद वो निकलते हैं नॉर्थ ब्लॉक में। नॉर्थ ब्लॉक क्या है, तो नॉर्थ ब्लॉक ऐसी जगह है जहाँ सेक्रेटेरिएट है, जहाँ सेक्रेटरी लोग रहते हैं, मंत्री लोग रहते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि ये तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बात हो रही है, सेंट्रल मिनिस्टर की बात हो रही है। आप देखेंगे कि स्टेट मिनिस्टर सबके भी यहाँ, जो यहाँ के मतलब छोटे मोटे पदाधिकारी होते हैं, BDO CO लोग होते हैं, और ADM रैंक के भी अफसर होते हैं, उनको भी मतलब जब काम पड़ जाता है, सेक्रेटेरिएट जाना पड़ता है राज्य सरकार के भी सेक्रेटेरिएट में, तो उनको समझ में आता है कि उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। एक किरानी भी कभी कभी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। तो फिर यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बात है। नॉर्थ ब्लॉक में वो लोग जाते हैं, दोनों मामा भांजा, और फिर वहाँ पर वो प्रयास करते हैं कि जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं, कल्याण मंत्री हैं, उनसे उनकी मुलाकात हो जाए। अब मुलाकात कैसे हो, तो तालमेल बैठाने लगते हैं, फिर इस दफ्तर से उस दफ्तर, इस चपरासी से उस चपरासी, इस सेक्रेटरी से उस सेक्रेटरी, लेकिन बात नहीं बन रही है। बहुत मशक्क़त के साथ उनको मतलब वो जो है 3 दिन का टाइम, 3 दिन में उनको मतलब बुलाने का आश्वासन मिलता है। 3 दिन में वो लोग बुलाते हैं। फिर जो पहुंचते हैं वो मंत्री महोदय के यहाँ, तो वहाँ जो उनके रजिस्टर पर मतलब फिर वहाँ जो उनके सचिव से मुलाकात होती है। और फिर ये भी दिखाता है कि जो ऊंचे ओहदे पर जो विद्वान आदमी, जो कर्मठ आदमी होते हैं, वो कैसे डील करते हैं लोगों को बिना उत्तेजित हुए, सब चीज़ सुनते हुए भी, और कैसे बहुत भाव भी नहीं देते हैं, क्या कि उनको तो इसका अनुभव होता है। सैकड़ों आदमी मिनिस्टर के यहाँ मिलने आएगा, तो एक चीज़ में अगर उलझ गए तो फिर कैसे कर पाएंगे। मंत्री को भी खुश रखना है, उनके लिए भी काम करना है, और पब्लिक को भी नाराज़ नहीं करना है। तो कैसे जो अच्छे रिसेप्शनिस्ट होते हैं और जो ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति को जब मतलब रिसेप्शन पर बैठा दिया जाता है, तो उनका क्या मैनर होता है, क्या व्यवहार होता है, इसकी भी यहाँ पर व्याख्या की गई है। यहाँ दिखलाया गया है कि जब वो वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ पहुँचते हैं तो उनको बताया जाता है कि ये जो मंत्री महोदय हैं बिना प्रीवियस अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। ये सब बात सब होती है। तो फिर जो है सो वो लौटते हैं अपने निवास स्थान में, और फिर किसी तरह मशक्क़त के साथ 3 दिन से पहले उनको बुलाने की बात नहीं होती है। तो फिर वो जो अंडर सेक्रेटरी हैं उसके निवास स्थान पर लौटते हैं और सोचते हैं कि क्या किया जाए, कैसे युक्ति लगाई जाए, किस युक्ति के प्रयोग से
जो कल्याण मंत्री हैं उनसे मुलाकात हो। सोहनलाल रतिराम से भी वो मिलते हैं मतलब जो पार्टी के जो सेक्रेटरी हैं वहाँ पर दिल्ली में, उससे मिलते हैं। और मतलब फिर ये भी जिज्ञासा करते हैं कि जो अंडर सेक्रेटरी महोदय हैं उनको फॉरेन टूर पर क्यों नहीं भेजा जाता है, फॉरेन प्रोस्पेक्ट्स के लिए उनका उपयोग क्यों नहीं होता है। तो यहाँ भी कलई खुल जाती है। जो पराक्रम से ज़्यादा पूछ परिक्रमा की होती है, रिलेशन का होता है, रिश्तेदारी का होता है। ये नहीं है कि आप मतलब यहाँ पर है। हालांकि ये बात पूरा सच मुझे नहीं लग रहा है अपने अनुभव से। जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं, बड़े बड़े ओहदे पर होते हैं, तो कई बार उनकी पूछ होती भी है। अब देख रहे हैं ना, अभी जो विदेश मंत्री हैं भारत के एस जयशंकर हैं, तो IFS से थे, तो उनकी काबिलियत को ही समझ करके मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको विदेश मंत्री बनाया है। अच्छा काम कर रहे हैं। तो पहले भी होता रहा है, IAS लोगों, जो सीनियर IAS ऑफिसर लोग रहे हैं तो पावरफुल रहे हैं। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि इनकी भी स्थिति दयनीय होती है। कई बार इनके योग्यता और क्षमता का उपयोग करके, चाहे उनसे सेवा लेने के बजाय जो रिश्तेदारी और नातेदारी के जो लोग होते हैं उनको तरजीह दी जाती है। तो इस संवाद में आप देखेंगे कि लेखक ये अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन और जो नानू काका हैं, तो उनकी जो बातचीत होती है तो पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं जाते हो विदेश में काम करने के लिए, विभाग तुमको क्यों नहीं भेजता है। तो बेचारा अपनी स्थिति को बयां करता है कि उसकी पैठ नहीं है, उसका अप्रोच नहीं है, उसको सोर्स नहीं है। तो इस हिसाब से वो अपनी बात को सेक्रेटरी महोदय रखते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। और उसके बाद फिर जब देखे कि न सेक्रेटरी महोदय के सौजन्य से कुछ लाभ हो रहा है, न ही वो जो कल्याण मंत्री के जो मतलब सेक्रेटरी हैं उनसे, आदमी तो बहुत विनम्रता से बात किया था, लेकिन वो तो मैनर बताया कि बिना प्रीवियस अपॉइंटमेंट के मुलाकात होगी नहीं, मंत्री महोदय किसी से मिलते नहीं हैं। तब पूरा ताना बाना हम लोग देखेंगे कि कैसे जो कोई मुश्किलात काम हो तो उसमें क्या करना चाहिए। एक उद्देश्य यह अभिव्यक्त करने का है। यहाँ मिस्टर स्टोरी राइटर मनोहर मालवंकर is describing the event, how it is tough for an ordinary man to see the minister, and on the other hand, how the people from bottom to top is believing the astrologer, how superstitious they are, and how powerful the astrologers are in India is very well described by Mr. Manohar Malgaonkar. Mr. Manohar Malgaonkar is in the opinion, and it is the real fact also, that the task which is very tough for an ordinary people or an ordinary man, and not for the ordinary man or the people, rather it holds good for the great or greater officials or the officers. What is difficult for the officials or officers is very easy for the astrologer or the Baba or the Dharm Guru, and it is so because the people, the ministers are believing very well in the astrologer and in the Babas or Dharm Guru. Actually, it is not so relevant
here if we are studying the psychology of the minister, it is not well concerned that he is believing on the astrologer or not. He has to do something with the astrologer is not concerned here. Here it is concerned that the king of Nanaur is believing on the astrologer. वो जो ननौर के जो राजा हैं, प्रिंस हैं, वो जो विश्वास कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर में, उनके हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उनका ओहदा कितना बढ़ जाता है, इस चीज़ की यहाँ पर चर्चा हुई। ठीक है, तो दूसरे दिन प्लान रचा जाता है कि कैसे परिधान को धारण किया जाए, कैसे मुरेठा को बांधा जाए, हाउ द appropriate turban is used, what kind of attire is adapted, and how to use the under secretary on the probation is the thing where we have to focus. And by this we may learn something, that how people are getting success in tough task is well described by the writer. So they are preparing in the proper attire, and the Nanu Kaka is advising Mr. Secretary that he should treat as if the under secretary on the probation is his ADC. What is the meaning of ADC? ADC का क्या माने होता है? तो ADC का मतलब होता है कि एड डी कैंप, मतलब अंगरक्षक। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। उसके अलावा जब वो ये भी देखेंगे कि गाली का कैसे प्रयोग होता है, गाली का लोग कब प्रयोग करते हैं, उसको भी बड़ा व्यंग्यात्मक ढंग से जो लेखक महोदय है वो कह रहे हैं कि हाउ द नानू काका वाज पकड़िंग हिज आईब्रोज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैसे अपने भौं को सिकोड़ रहे थे, एंड हाउ ही वाज इन द सिचुएशन ऑफ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, भाषाई आपातकाल में वो कैसे थे, कैसे फंसे थे, और भाषाई इन द लिंग्विस्टिक इमरजेंसी हाउ ही वाज यूजिंग स्वेयर वर्ड्स इज वेल डिस्क्राइब्ड बाय मनोहर मालवंकर। मनोहर मालवंकर के द्वारा इन सारे बातों को बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। एक एक स्टांजा, एक एक स्टेप आप देखेंगे कि कितने गहरे निहितार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ से अभिव्यक्त है कि एक छोटे तबका के आदमी जो समाज में एक जो बहुत बड़े अफसर नहीं हैं, जिनकी बहुत हैसियत नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनका बड़े आदमी के साथ कैसे उठना बैठना होता है, कैसे डीलिंग होता है, सारे चीज़ों को, उनकी मनोदशा क्या होती है, कैसे उनके माथे पर बल पड़ जाते हैं जब वो चाहते हैं कि, या उनको काम होता है मिनिस्टर से, या जब नहीं मुलाकात हो पाती है तो कैसे वो भाषाई आपातकाल के शिकार होते हैं। हाउ दे आर द विक्टिम ऑफ द लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, हाउ दे are facing the problem, how they are using swear words, or you may say slag. All these are the fact and figure, and here Mr. Manohar Malgonkar is focusing towards all the realities and fact. तो इस हिसाब से मुरेठा उरेठा बांध करके उसके माथे पर उसको बांधते हैं, और पहले पूछते हैं वो, मतलब नानू काका, कि तुमको आता है बांधने उंधने की नहीं आता है? तो बेचारा कहता है कि नहीं, हमको तो नहीं आ रहा है।
ऐसा नहीं आता है बांधना, तब वो बोलते हैं आई हैव टू पुट इट ऑन, मुझे ही तुम पर इसे बांधना होगा। और जब तुम चल रहे हो तो तुम ऐसे दिखना जैसे कि तुम मेरे एडीसी हो, एज इफ़ यू आर माई एडीसी। तो एडीसी का मतलब हम बताए अभी अभी आपको, एडीसी का मतलब होता है एड डी कैंप, मतलब अंगरक्षक, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद वो भाड़ा पर एक कार लेते हैं। हायर, यहाँ पर शब्द का चर्चा हुआ है, हायर ए कार। अब कार कैसा लेते हैं, तब जब जा रहे हैं मंत्री महोदय के यहाँ, तो कार भी तो लेंगे, तो अच्छा कार लेंगे, तो चाहते हैं कि एक बढ़िया सा कार ले ले, और वो कार ले करके मंत्री महोदय के यहाँ जाएं। और मंत्री महोदय के यहाँ जब जाते हैं तो फिर अपना परिचय देते हैं कि वो नन्नौर के जो मतलब राजा हैं, तो उनके यहाँ वो हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष हैं। निन्नौर के जो राजा हैं उनके वो मतलब ज्योतिषी हैं, और ड्रेस भी उसी हिसाब से तैयार करते हैं। और फिर पहुंच करके आप जब मंत्री सब के यहाँ जाएंगे या बड़े ओहदा के यहाँ, आजकल तो स्कूल सब में भी आप कोई कन्वेंट स्कूल चले जाइए तो वहाँ पर भी विजिटर्स बुक रहता है। आप जो भी आदमी आ रहा है जा रहा है तो नाम, आगमन, प्रस्थान, ये सब सिग्नेचर करना होता है। और तो मिनिस्टर ही का निवास स्थान है, तो जाहिर है वहाँ भी ऐसी व्यवस्था होगी कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, विजिटर्स बुक होगा। तो विजिटर्स बुक में क्या करते हैं कि वो मतलब अपना फॉल्स एड्रेस डाल देते हैं, और अपना परिचय भी फॉल्स डालते हैं कि वो जो हैं सो हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर हैं, महाराजा ऑफ निन्नौर के, ठीक है। तो we may understand and we may say that he tells his bhanja means the under secretary on the probation, to hire a grand car and presents to be his driver, present himself to be his driver. He himself dressed like an astrologer, and in that very dress, in that very attire, he went to the residence of the welfare minister, where he writes his false address, showing himself as the hereditary astrologer of the Maharaja of निन्नौर in the visitors book. अब हम लोग देखेंगे कि महाराजा का जो विजिटर्स बुक है उसमें वो फॉल्स एड्रेस डाल देते हैं। कौन सा एड्रेस, तो प्रोबेशन पर जो अंडर सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन हैं, उनके निवास स्थान का एड्रेस डाल देते हैं, और अपना जो परिचय लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि मतलब जो निन्नौर के जो महाराजा हैं तो उनके ये हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर हैं, इस हिसाब से उसमें दर्ज करके फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। एज सुन एज द मिनिस्टर सीज द एड्रेस ऑफ सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, ही कम्स टू मीट नानू काका ऑन द रेजिडेंस ऑफ अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि नानू काका क्या करते हैं। नानू काका करते हैं कि अपना जो परिचय उसमें लिख देते हैं कि मतलब एस्ट्रोलॉजर, हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ किंग निन्नौर। तो किंग निन्नौर के हिसाब से तो निन्नौर के आप हम लोगों ने देखा कि कैसे जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं वो देख रहे हैं कि भाई ये मंत्री ये सब तो हार जीत के खेल के साथ समाप्त हो जाता है। अब मान लीजिए कि मंत्री हैं, अकल सरकार गिर गई तो क्या हो जाएंगे, लेकिन ख़ानदानी लोग जो होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं, वो तो फॉरएवर होते हैं, वो तो सदा के लिए होते हैं। तो जो मंत्री महोदय है उनकी ये दिली इच्छा है कि उनके लड़की की शादी निन्नौर के जो महाराजा हैं उनके लड़का से हो। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब ये जानकारी मिलती है ये नानू काका को, तो उसका वो लाभ उठाते हैं और विजिटर्स बुक में दर्ज कर देते हैं द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ किंग
निन्नौर, और यू में से द महाराजा ऑफ निन्नौर। और ये दाव काम भी कर जाता है। जब मंत्री महोदय आते हैं, विजिटर्स बुक को चेक करते हैं, देखते हैं कि अरे यहाँ तो निन्नौर के महाराजा के हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर आए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो स्वयं उनसे मतलब लाभान्वित होना चाह रहे हैं, उनके साथ संबंध मतलब ये करना चाहते हैं, और संबंध है भी शायद पहले से उनके साथ, लेकिन और प्रगाढ़ होना चाह रहे हैं, संबंध को और प्रगाढ़ करना चाह रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अपने बच्ची की शादी वो मंत्री महोदय करना चाह रहे हैं किंग ऑफ निन्नौर के लड़के से। तो इस हिसाब से जब वो देखते हैं, उनकी नज़र पड़ती है कि विजिटर्स बुक में जो किंग निन्नौर के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका मतलब एड्रेस है, उनका मतलब वो आए हैं, तो फिर उस एड्रेस पर स्वयं मंत्री महोदय पहुंचते हैं। और इस हिसाब से जो इतना टफ काम है उसको बहुत खूबसूरती से छल छिद्र अपना करके, तिक्रम लगा करके, जुगाड़ टेक्नोलॉजी की मदद से इसको सॉल्व कर लिया जाता है। और अंततः जो नानू काका हैं वो सफल होते हैं मंत्री महोदय से मिलने में। तो फिर यही कहानी है इस लघु कथा की, ए पिंच ऑफ स्नफ। तो पिंच ऑफ, अब कोई भी जो टाइटल होता है, किसी भी कहानी का जो शीर्षक होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि 2-3 ढंग से शीर्षक लिया जाता है। शीर्षक ऐसा होता है कि वो कहानी के इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहे। तो मैं बच्चों को हमेशा कहा करता हूँ कि आप कोई भी चीज़ को अगर प्रॉपर वे में बढ़िया से समझना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे वाई और हाउ लगाइए। तो यहाँ आप देखेंगे कि पिंच ऑफ स्नफ जो शीर्षक दिया गया है वो क्यों दिया गया है। तो ये जो पुराने ज़माने के जो लोग सब होते हैं, तो ज़मींदार टाइप के जो लोग होते हैं, तो उनमें पहले शगल था पान चबाने का, या फिर ब्रांडेड शराब लेने का, या ख़ास तरह के टर्बन का, पगड़ी का, या ख़ास तरह के कार का। अब जैसे देखते हैं ना, एक कार है रोल्स रॉयल, तो रोल्स रॉयल पर कौन चढ़ते हैं? तो रोल्स रॉयल ऐसा कार है जिस पर बड़े बड़े मतलब महाराजा सब चढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लग्जरियस कार है, लेकिन वो स्टेटस सिंबल है। अभी आप देख रहे हैं ना बुलेट जो गाड़ी है, ऐसा नहीं है कि उसकी उपयोगिता बहुत है, लेकिन अब 2 लाख 2.5 लाख का बुलेट है, तो उसको मतलब जो पैसा वाले लोग हैं तो उनका स्टेटस सिंबल बन गया है। तो कार में भी BMW है। तो ये सब जो कार है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कंफर्टेबल है या कुछ ऐसा है। BMW सब में आप यात्रा करेंगे तो मतलब लगेगा कि ओ ये कोई आदमी जो है सामान्य आदमी से ऊपर है। तो ये देश में ये एस्टेब्लिश किया गया है या एस्टेब्लिश हो गया है कि आप VIP हैं तो आपके गाड़ी का नंबर अलग होगा। आप देखेंगे कोई कार पर देखिएगा ना 001 लिखा हुआ है, तो 0001 वाला, 0012 वाला, 002, 003, 004 इस सब टाइप का VIP नंबर होता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर जो नानू काका हैं, तो पहले तो वो अपने आप को ज़मींदार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ज़मींदार के रूप में जब प्रस्तुत करते हैं, उससे दाल नहीं गलती है, तो फिर अपने आप को एस्ट्रोलॉजर के रूप में प्रस्तुत करके फिर लाभान्वित होते हैं। इसमें कुछ वाक्य सब है जिसका मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसे एक वाक्य आया है, जैसे जब वो स्टेशन पर वो अंडर सेक्रेटरी उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं, तो टोकरी को दे देते हैं, उसको थमा देते हैं जिसमें किटेन होता है। तो उसके लिए वाक्य प्रयोग हुआ है, आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मैंने टोकरी को अपने बाँह में दबा लिया। उसके बाद देखिएगा एक शब्द हुआ अपना उनके परिचय के बारे में। जो राइटर महोदय हैं वो क्या कर रहे हैं, जिनके यहाँ नानू काका जो गेस्ट के रूप में आ रहे हैं,
तो उसमें डिस्क्राइब हुआ है कि आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मतलब मैं परिवीक्षा पर एक उपसचिव हूँ। तो प्रोबेशन ट्रेनिंग अवधि जो होता है जॉब परमानेंट होने से पहले आईएएस अफसर लोगों का, तो उनको बोला जाता है आईएएस ऑन प्रोबेशन। जब सेक्रेटरी की बात होगी तो होगा सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, अंडर सेक्रेटरी की बात होगी तो अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। उसके बाद देखिए कि कैसे मतलब एक शुरुआत में कैसे मतलब वो बड़ा सुख हो जाते हैं, कैसे वो हिल जाते हैं ये न्यूज़ सुन कर, कैसे वो भयभीत जैसा हो जाते हैं, उसके लिए कितना बढ़िया से वाक्य का प्रयोग हुआ है। ओ माय गॉड, आई सेड could not we send him a wire saying we are leaving that I am transferred or something? Oh my God। तो जब वो उनकी माँ के द्वारा उनको पता चलता है कि नानू काका आ रहे हैं, तो अपने माँ को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको बता दें कि हम लोगों का ट्रांसफ़र हो गया है, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, या हम लोग की जगह को छोड़ दिए हैं, या कहीं पर चले गए हैं, या किसी भी हिसाब से कोई युक्ति से ऐसे इनको बतलाया जा सके कि मतलब हम जो हैं सो बाहर हैं। तो उसके अलावा कुछ वोकेबलरी सब है, जैसे लॉयल का अर्थ होता है वफादार, मस्टच मतलब मूछ, प्रोबेशन मतलब परिवीक्षा, व्हिस्पर मतलब फुसफुसाना, टक्ट मतलब हाथ में फंसा लेना, इनरमोस मतलब बड़ा, बुड़का मतलब नकाब, आउटरेस्ट किटेन मतलब नाराज बिल्ली का बच्चा। तो इस हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, कुछ और भी एक आध गो वर्ड सब देख लीजिए। जैसे पकड़िंग हिज आईब्रोज मतलब भौं को सिकोड़ना, कॉरिडोर मतलब गलियारा, सुअर वर्ड्स मतलब गाली, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी मतलब भाषाई आपातकाल, इट इज़ ऑल ऑफ न्यू ऐसा नहीं है, इट इज़ ऑल ऑफ नाउ मतलब ऐसा नहीं है। उसके बाद आई हैव टू पुट इट ऑन, मुझे ही इसे तुम पर बांधना होगा। तो इस सब का कुछ वर्ड है, जो कुछ वाक्य है, जिसको आप लोग देखिए, गौर से देखिए। जैसे एक जो है, जैसे जब वो गए थे मिलने के लिए सेक्रेटरी के यहाँ, और जब अपने आप को ज़मींदार के रूप में पेश कर रहे थे और उनकी दाल नहीं गल रही थी, तो उसके लिए कितना बढ़िया वाक्य है। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, नानू काका एक तरह से दम तोड़ रहे थे। इस तरह के वाक्य सबके प्रयोग करने से आपकी अंग्रेजी भी सुधरेगी। एक आध गो क्वेश्चन भी देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, द न्यूज़ दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब हर सन, वाई वेयर दियर रिस्पॉन्सेज सो डिफरेंट। तो इसमें इस मतलब एक ही जो घटना है, नानू काका आ रहे हैं तो माँ जो बड़ा खुश हो रही है, बेटा क्यों डिस्टर्ब हो गया। तो एक ही घटना का इम्पेक्ट दो आदमी पर अलग अलग क्यों हुआ, एक ही घटना का रिस्पॉन्स दो आदमी पर अलग अलग ढंग से क्यों होता है। तो इसको हम कह सकते हैं, लेडीज आर सीन टू बी वेरी पार्टिकुलर टुवार्ड्स देयर मैटरनल होम टू गेट द न्यूज़ ऑफ हिम। द मदर became very glad as Nanu Kaka was her brother. On the other hand, her son was trained to regard ministers higher than gods. तो इस हिसाब से जब समझते हैं कि ये प्रोबेशन पर जो अंडर सेक्रेटरी हैं तो भयभीत हो जाते हैं कि अब कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मिनिस्टर से मिलाएंगे, तो उन पर दूसरे तरह का प्रभाव पड़ता है। और माताजी को खुशी होती है कि उनके भाई आ रहे हैं। उसी हिसाब से दूसरा क्वेश्चन है, डू यू हैव ए सिमिलर एक्सपीरियंस, हैज़ योर रिस्पॉन्स टू द न्यूज़ of the arrival of any guest ever been different from that of the other members of the family। अगर आपको परिवार में सबको खुशी होती है गेस्ट को देख करके, तो आप कह सकते हैं कि नो आई हैव नॉट एनी सच एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसेस, नो एवरी मेंबर ऑफ आवर फैमिली एक्सप्रेसेस डिलाइट एट द अराइवल ऑफ आवर गेस्ट। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसे विकट गेस्ट आ जाते हैं जिससे सबको परेशानी होती है, तो आप कह सकते हैं येस आई हैव सेम एक्सपीरियंस